Welcome you all in our channel Desirable Education, and in this video I will explain you the second and third stanza of your favorite poem Our Casuarina Tree, written by Toruder. So let's start. When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on its rest. So in these lines Toruder says, when at first in the morning I open my window, my eyes rest on this beautiful casuarina tree that delights me, that pleases me. तो यहाँ पे टोरदत्त कहती है, द मॉर्निंग में मैं अपनी विंडो को खोलती हूँ तो मेरी आंखें इस ब्यूटीफुल कैजुरिना ट्री पर पड़ती है जो मुझे बहुत प्लीजिंग लगता है, जो मुझे बहुत आनंद देता है. Sometimes and most in winter on its crest, a grey baboon sits statue like alone, watching the sunrise. And in these lines he says, sometimes and mostly in winter, on the top of this casuarina tree, a grey baboon sits motionlessly just like a statue and watches the सनराइज. तो यहाँ वो कहती हैं कि कभी कभी और मोस्टली विंटर में एक ग्रे बबून इस ट्री के टॉप पर बैठता है एक स्टैच्यू की तरह और सनराइज को होते हुए देखता है. While on the lower boughs his puny offspring leap about and play, and on the lower branches of this tree its young ones leap and play. और इसकी लोअर ब्रांचेस पर इसके छोटे छोटे बच्चे खेलते और कूदते हैं. And far and near kokilas hail the day, and to their pastures wend a sleepy cow. And here she says that everywhere kokilas welcome the day and cows are led to their pasture. तो यहाँ वो कहती हैं कि कोकिलास डे को वेलकम कर रही हैं और रंभाती हुई गायों को उनके चारागाहों पर ले जाया जा रहा है. And in the shadow on the broad tank cast, why that hot tree so beautiful and vast. Here she glorifies the beauty of this casuarina tree and says that the shadow which is formed by this old tree on a broad tank is very beautiful and vast. तो यहाँ पे वो कहती हैं जो शैडो इस ट्री के द्वारा, इस ओल्ड ट्री के द्वारा एक ब्रॉड टैंक पे पड़ती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और वास्ट है. एंड द वाटर लिलीज which the water lilies are growing under the shadow of this tree in the tent just like a स्नो एंड मास. और यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो वाटर लिली है जो उस टैंक में खिले हुए हैं वो इस पेड़ की शैडो के नीचे एक स्नो के ढेर की तरह ग्लो कर रहे हैं. तो नाउ आई विल समराइज यू दिस पैरा. यहाँ पे टोरदत्त कहती है कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी खिड़की को खोलती हूँ तो मेरी आंखें इस ब्यूटीफुल कैजुरिना ट्री पर पड़ती हैं जो मुझे बहुत प्लीजिंग लगता है, जो मुझे बहुत आनंद देता है. और कभी कभी मोस्टली विंटर में एक ग्रे बबून इसकी ट्री के टॉप पे बैठता है और सनराइज को होते हुए देखता है. और इसकी जो लोअर ब्रांचेस हैं इसके छोटे छोटे बच्चे खेलते और कूदते हैं. कोकिलास डे को वेलकम करती हैं, गायों को उनके पास्चर पर ले जाया जाता है. और जो इस ट्री की जो छाया एक ब्रॉड टैंक पे पड़ रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और वास्ट है. और इसी ब्रॉड टैंक में बहुत सारे वाटर लिलीज खिले हुए हैं जो इस पेड़ की छाया के अंदर एक स्नो के एंड मास के तरह, स्नो के ढेर के तरह ग्लो कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस stanza is clear to you all. So let's move on to the next stanza. But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. So in this line Toruder says that this casuarina tree is very dear to me. It is dear to me not because of its beauty and grandeur, but because under this tree me and my sibling Aru and Abdu used to play in the childhood. So that this tree is very dear to me and though that time passed. तो यहाँ पे वो कहती हैं ये जो कैजुरिना ट्री है ये उन्हें बहुत प्यारा है. ये उन्हें इसलिए प्यारा, इसकी ब्यूटी या ग्रैंडियर की वजह से प्यारा नहीं है बल्कि इसलिए प्यारा है क्योंकि इस ट्री के नीचे वो अपने भाई बहन आरू एंड अब्दू के साथ बचपन में खेला करती थी. और यहाँ पे इस ट्री के नीचे उन्होंने बहुत सारे अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं. दो दैट टाइम पास्ट इट, पर वो समय बीत चुका है. O sweet companions, loved with love intense, for you
shall the tree be ever dear. And here she addresses her sibling Aru and Abju and say, oh my sweet companion, it is my love and deep affection for you, and for your sake this casuarina tree shall ever remain dear to me. तो यहाँ पे वो अपने भाई बहन को एड्रेस करते हुए कहती हैं, जो मेरा आपके लिए प्यार है, जो डीप अफेक्शन है, तो आपकी ही खातिर ये ट्री मुझे हमेशा डियर रहेगा. Move on to the next line. Blend with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. And here she says, this tree arises in my memory, mingled with your images, and these images remains in my mind, in my memory, in my thought, till my eyes are not filled with टीयर्स. तो यहाँ पे वो ये कहती हैं, ये जो ट्री है जो मेरी यादों में मेरे भाई बहन की इमेजेस के साथ घुल मिलकर आता है, और ये इमेजेस मेरी आंखों में तब तक रहती हैं जब तक कि मेरी आंखें आंसुओं से नहीं भर जाती. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. What is that dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach? And here she asks the question that what is this murmuring sound that I can hear? It sounds like a dirge or a sad song. Then she said that it seems that sea waves are breaking on a stony beach. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करती हैं कि ये मर्मरिंग साउंड क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि किसी दर्ज की तरह, सैड सॉन्ग की तरह लगता है, और ऐसा लगता है कि जो सी वेव्स हैं वो किसी स्टोनी बीच से टकरा रही हूँ. It is the tree's lament and airy speech that happily to the unknown land may reach. And here then she says that the sound that I can hear, it seems that it is the tree mourning on the death of her sibling Aru and Abju, and a strange speech that is reaching to an unknown land, that is possibly reaching to an unknown land. It means the land of departed soul. तो यहाँ पे वो कहती है जो ये साउंड मुझे सुनाई दे रहा है वो इस ट्री का दुख है जो उनके भाई बहन की डेथ पर प्रकट कर रहा है, और एक ऐसा विचित्र संदेश है जो किसी अननोन लैंड, इट मीन्स लैंड ऑफ डिपार्टेड सोल तक पहुंच रहा है. सो द ओवरऑल समरी ऑफ दिस पैरा विल बी, तो यहाँ पे टूरदत्त ने कहा है ये जो कैजुरिना ट्री है इनको बहुत प्यारा है. यह उन्हें उसकी ब्यूटी या ग्रैंडियर की वजह से प्यारा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि बचपन में वो अपने भाई बहन के साथ इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवमेंट इस पेड़ के नीचे स्पेंड किए, इसलिए ये बहुत प्यारा है. फिर वो अपने भाई बहन को एड्रेस करते हुए कहती है कि ओ माय स्वीट कंपेनियन, ये जो ट्री है वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए डियर रहेगा. तुम्हारे प्यार और तुम्हारे लिए जो मेरी डीप अफेक्शन है, इस वजह से ये हमेशा मुझे प्यारा रहेगा. और वो कहती है ये जो पेड़ है वो मेरी यादों में तुम्हारी इमेजेस के साथ घुल मिलकर आता है, और ये इमेजेस मेरी आंखों में तब तक रहती हैं जब तक कि मेरी आंखें आंसुओं से नहीं भर जाती. फिर वो कहती है कि मुझे एक मर्मरिंग साउंड सुनाई दे रहा है जो किसी सैड सॉन्ग या दर्ज की तरह लगता है, और ये साउंड कुछ इस तरह से है जब कोई सी वेव्स किसी स्टोनी बीच से टकराती हो. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इस ट्री का दुख है जो वो अपने जो आपकी डेथ, इसमें मेरे भाई बहन की डेथ पर प्रकट कर रहा है, और एक ऐसा स्ट्रेंज मैसेज है और मॉर्निंग सॉन्ग है जो किसी अननोन लैंड, इट मींस लैंड ऑफ डिपार्टेड सोल तक पहुंच रहा है. आई थिंक बोथ द स्ट्रेंजर्स आर क्लियर टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.